Do you jerk your shit on a mild pace every Sunday afternoon? That's not the point. मेरा सवाल ये है कि how do you prefer to do it? Fuck. ऐसे grip की बात नहीं कर रहा मैं. मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि what do you prefer to watch while doing it? Is it peener on women? In men? No peener, just women? Not humans? Dead humans? What is wrong with you? The point is, तुम कुछ भी देखो while jerking it, nothing is curated for you. The man fucking the woman, maybe a horse, is not you. And अगर मेरे को international goon game में एक respectable spot लेना है तो the E person that I'm pretending to fuck has to feel like someone that is doing all that shit for me. And when I say shit for me, I mean shit for me. Do you remember her or maybe her? Not their faces, of course, understandable, but at least name तो याद होगा ना? याद है तो फिर सर्च करो क्योंकि इनमें से हर एक बंदी मिलियनेयर है. डॉलर्स में बात कर रहा मैं. And funny चीज ये है कि unlike normal porn where you actually get fucked hard by multiple people sometimes even by animals, preferably a horse, this business model only involve pretending to get fucked. Just pretending. Sex chat का option भी है तुम्हारे पास if you want. Although मेरे को ये नहीं समझ आता कि how they're able to have a chat with all of their gooner fans all at once. क्या आदमी से इश्क लड़ाने के पैसे दे रहा है तू? बट मेरे को दिक्कत ये है कि जब भारत का मेजॉरिटी आदमी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बस दरिंदगी के लिए जाना जाता है, स्टॉकिंग प्रैक्टिकली एवरी वेस्टर्न टूरिस्ट, अपने यहाँ की औरतें सेफ नहीं है, पुलिस स्टेशन तक में भी नहीं, then shouldn't they be given a cheaper and safer alternative? मतलब कहीं और मुंह मारने का जरिया is the primary need for Indian men these days. And ये बात मैं नहीं भाई, डेटा बोल रहा है बहन. India ranks third in the entire world when it comes to porn consumption. And ये metric भाई porn ban के बाद का है. We are resilient towards porn. We are passionate about it. And yet, India के laws on sex are so fucking weird. Consuming porn is legal according to our jurisdiction, but India for some reason still banned hundreds and thousands of porn websites. What? Selling sex toys is legal as well as long as you don't advertise them as sex toys. Basically, तुम्हारी माँ का prostate massager ऐसे कह के बेच सकते हो. मतलब माँ से पूछो अपनी. And the most absurd part about this entire scheme is that there are no laws at all about a lot of things involving porn or sex even. For example, do you think you can own a double twist surround sound 5.1 lithium powered auto lubricated slight moan ASMR provider sex doll in India? Do you think you can own that? Yes, you can. इसलिए नहीं कि हम democratic and independent हैं. Adventure. None of that. ये probably इसलिए legal है क्योंकि lawmakers को से नहीं पता कि भाई सेक्स डॉल जैसी भी कोई चीज होती है. Like imagine you go to the prime minister with a couple of issues in a list. Mosque demolition, military affairs and तीसरा है synthetic truth distribution. Why do you think honorable prime minister know anything about these things? I mean, I hope not. अब ऐसे में इंसान लॉज से तो चुप ही रहा है तो साथ में उस चीज की वीडियो पोस्ट करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा ले, वही बेटर है ना. बट उसमें भी दिक्कत है क्योंकि भाई चुद के बाद भी पैसा नहीं है इंडिया में कमाने के लिए. अब भाई ओयोमी को देख लो. ओयोमी 5 साल से यूट्यूब पे चुप रहा है एंड स्टिल एम्प्लॉयमेंट की भीख मांग रहा था लास्ट वीडियो में. एंड अगर अब अगले 2 साल तक जी लगा के मेहनत करके कमर तोड़ के ओनली फैंस पे भी चुता ना तो भी पैसे नहीं कमा पाएगा. एंड दिस इज सैड. मैं बेइज्जती नहीं कर रहा बट है तो है. आई मीन ओनली वे ओमी इज गोना गेट 2 million views is when Bonnie Blue herself is in that video with him. Bonnie Blue for example 1000 बंदे चुप गई 24 घंटे में, प्रॉफिट $2 million. यूएसए ने 24 घंटे में एक पूरी कंट्री चुप दी, लॉस $10 million. बिजनेस इज वे मोर प्रॉफिटेबल. अब जब बंदे 800 रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे बंदियों को आधे कपड़े उतारने के, जहां पे वो बता भी नहीं पा रहे कि भाई ऐसे उतार, तो वो ओनली फैंस पे पैसे नहीं देंगे. बट क्यों नहीं दे रहे? वेल, लॉज इन इंडिया आर नॉट जस्ट नाइव, वो स्ट्रेट अप चूतियां हैं. सॉफ्ट पॉर्न इज नॉट कंसिडर्ड पॉर्न एट ऑल. मतलब जब तक तन पे एक भी धागा है ना, जब तक इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गोना बी इंटरेस्टेड इन फकिंग यू लीगली. क्योंकि रिमेंबर किड्स, जब तक कुछ चीज इन अ केज, तुम लोग केज से बाहर रहोगे. सिंपल इज दैट. एंड इतना रिस्क लेके फायदा भी नहीं है ना. लुक एट इंडियन मेन स्पेसिफिकली ऑनलाइन. स्किन का एक सेक्शन भी रिवील हो रहा हो ना तो दैट इज इनफ टू मेक इंडियन मेन हार्ड. एंड अगर स्किन गोरी है ना तो रन एंड हाइड, जस्ट रन एंड फकिंग हाइड. एंड इन्हीं बंदों को अगर मैं कुछ डायरेक्टली बोल दूं ना तो बजवा लो इनसे रात भर. इन्हीं बंदों की प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बायो में लिखा होता है सनातन, और यही बंदे किसी रैंडम एस बंदी की प्रोफाइल पे या फिर उसकी रील के नीचे कमेंट में अपनी सेक्स ड्राइव डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. पेपर में वो के गाय पर निबंध नहीं लिखा जा रहा तुम पे. एंड गलत प्रूव करना है तो करो मेरे को. सनी लियोनी पॉप स्टार होने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया, मूवीज एंड टीवी शोज में फीचर क्यों हो रही थी भाई? पूनम पांडे इज द क्लोजेस्ट यू विल गेट टू एन ओनली फैन
स्टार, बट स्टिल कोई भी यूट्यूबर कोलैब करने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता। पायल गेमिंग को लेजिट लास्ट वीडियो में गाली दी है मैंने, मतलब डायरेक्टली गाली नहीं दी, बट हाँ थोड़ा बहुत रोस्ट तो किया ही था। बट स्टिल कल को इफ आई गेट टू कोलैब विद हर, आई वोंट से नो फॉर अ सेकंड, आई विल फकिंग फोल्ड। क्योंकि देखो, यूट्यूबर से लड़ाई करके मेरे को मिलेगी स्ट्राइक एंड गन शॉट्स, एंड यूट्यूबर्स से कोलैब करके मेरे को मिलेंगे कम शॉट्स, कम ट्रिब्यूट्स, एंड सेकेंड ऑप्शन इज सो मच बेटर, तो मैं तो वही लूंगा। एंटायर इंडियन इंटरनेट इज सर्वाइविंग ऑन द फैक्ट कि इंडियन आदमी को प्लेजर एंड पावर दोनों सस्ते में चाहिए। एक के लिए पॉइंट है ही, एंड दूसरे के लिए सट्टेबाजी एप्स, एंड वो तो गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है, तो मजा ही मजा। ओनली फैंस however still have its own benefits, मतलब it is popular for way more complicated stuff than just porn। मतलब मेरे मुंह पे हक दो वर्चुअली, यार ये हिंदी में बोलूंगा ना तो अजीब लगेगा, मतलब लेट्स गो फॉर इंग्लिश। फार्ट ऑन मी, शिट ऑन मी, प्यूक ऑन मी, मतलब छाती पे नाम लिख दो हमारा मेम साहब, गंदी कच्ची में चाय छान के स्पीड पोस्ट कर दो मेरे को। चाय नहीं, फनी चीज ये है कि ये डिस्क्राइब करते करते ही टू देयर ओनली फैंस मॉडल भारतीय आदमी कम कर देगा। वैल्यू फॉर मनी तो दूर की बात है। वी पीपल चेज वर्च्यू एंड मोरालिटी सो मच, एंड हमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई भी नहीं है। मतलब अपनी औरत औरत एंड दूसरे की छिना। हरियाणा में तो लोग अपनी को भी छिना। बट मैं ये सब इसलिए बोल रहा एंड पॉइंट आउट कर रहा क्योंकि भाई इंडियन पब्लिक का बस चले तो वो तुम्हें लॉज एंड अथॉरिटीज से पहले मार देगी जान से। मतलब तुम खुद सोचो, इतने बड़े हिपोक्रेट है हम लोग कि भाई इफ यू आर सेलिंग न्यूडिटी एंड व्हाटएवर ऑब्सीन कंटेंट दैट यू आर सेलिंग ऑनलाइन एंड यू आर मेकिंग 100 रुपीज आउट ऑफ इट, हम लोग तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई हमारी औकात और वैल्यू हो जाएगी डाइल्यूट, बिकॉज यू आर इन आवर वर्ड, इन आवर आईज। एंड अगर उसी सेम टाइम पे तुम न्यूडिटी सेल करके लाखों कमा रहे हो, बट उससे भी ज्यादा तुम पॉपुलैरिटी कमा रहे हो, तुम हो देश के लिए खतरा। The only form of threat that she poses is on your ego after selling that amount of nudity and earning lakhs. Your ego is getting hurt क्योंकि तुम इतने पॉपुलर खुद भी कभी नहीं हो पाए। आपको दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें देश और धर्म के रक्षक, एंड देश की रक्षा के बाद सेलिब्रेशन में चलेगी दारू ऑन सनी लियोनी आइटम सॉन्ग्स टू चिल टू। मतलब जब तक बादशाह 3-4 बार चूतना बोल देना गाने में, जब तक तो मजा ही नहीं आता, दारू चढ़ती ही नहीं है। Someone got killed by someone in an Indian state recently, बोलूंगा नहीं कौन वरना मेरी बजा देंगे। फनी की बेल्टें यूज नहीं हुई इस चीज में, बट कैन prostitution be a career in India? Well, इट काइंड ऑलरेडी इज, एंड इस बिजनेस के मेन कस्टमर है मोरालिटी के चूपे लगाने वाले धर्मप्रस्त लौंडे। अबे बोस एक बात बताओ, लौंडे हो, प्यूबर्टी हिट हुई होगी ना, चल भाई लड़कियां भी हैं, प्यूबर्टी हिट हुई होगी ना, तो ये बोलने में गांड क्यों फटती है कि यू डोंट मास्टरबेट? यू डू, एवरीवन डज, इट्स नेसेसरी, वरना दिमाग चुप जाएगा भाई। एंड इफ यू डू मास्टरबेट, ऐसे ड्राई तो नहीं मारते होगे, यू मस्ट बी वॉचिंग समथिंग विद इट। तो फिर ये बोलने में गांड क्यों फटती है तुम्हारी कि यस यू कंज्यूम पोर्न? आई डू भाई। देखो आइडियल सिनेरियोज में ये सब डिस्क्राइब करना कि भाई बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, करियर बनाओ, एनी काइंड ऑफ इंडिसेंसी इज अ सिन, कंप्लीट सिन, ये सब बोलने में ना बहुत मजा आता है। बट जब तुम रियल वर्ल्ड में वॉकआउट करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई दिस इज सो मच बेटर देन स्मोकिंग सिगरेट्स एंड डूइंग ड्रग्स। आई डू मैस्टरबेट, ठीक है, बट मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है। एंड इसलिए नहीं कि मैंने कोई गुरु ज्ञान ले लिया एंड गुरु ज्ञान लेके बैठ गया, मैं सब छोड़ रहा हूँ, नहीं। आइडिया ये है कि भाई मेरे को अपने बंदे मिल गए, ठीक है, एंड मैं सारा जीवन का रेडी रोना उनके सर पे चेप देता हूँ और मेरा दिमाग शांत हो जाता है, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर मी टू लिव माई लाइफ पीसफुली। मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स द आइडिया। एडिक्शन ही तो बैड है लौंडे, हाँ ये मैंने कोटा फैक्ट्री से चुराया, ठीक है, चुप रहे। एंड इट्स नॉट जस्ट मेन दीज डेज दैट sexualize women, it's women wanting to walk around naked in the name of empowerment। देखो मेरा थोड़ा अलग ओपिनियन है इस चीज पे, मैं ये नहीं बोलता और मैं उन लोगों के साथ भी नहीं हूँ, सबके सब गांडू हैं जो ये बोलते हैं कि भाई कपड़े छोटे पहने थे तो आर-वर्ड होना ही था, बहन के पिट जाएगा, मेरे से दूर रहे। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई देखो, इफ अ मैन वॉक्स अराउंड विद हिज कॉक आउट, ही विल श्योरली गो टू जेल, बट इफ अ वुमन वॉक्स अराउंड विद हर bazookas out, she will use the words empowerment and freedom to justify this act of hers and probably even end up earning money for it. I mean, Western bitches are doing it. कुछ भी करो भाई, मेरा क्या। If you are selling your body and sexualizing yourself for money, some people will call you out. अब एक बात तो बताओ बहन, तो नंगा होके तुम्हें पैसे भी कमाने हैं और फिर कोई आदमी तुम्हें कॉल आउट करे तो उसको इंसल और मिसोजिनिस्ट भी बोलना है? भाई ये तो हिपोक्रेसी एंड चुप्पे बनती है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब एमोरेंथ खुला बोलती है ना कि भाई उसका बिजनेस ये है एंड पीपल लव हर फॉर इट बिकॉज शी इज रियल एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू एज वेल। मतलब देखो भाई साहब, नंगे होके अगर पैसे कमाने हैं तो गालियां तो सुननी पड़ेंगी, यू शुड बी चिल विद इट। बाय।